ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, 12ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ 12ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇਕਰ 2022-23 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ जुलाई 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ जुलाई 2023 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਵਾਰਡਸ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਬਚਰੀ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਅਵਾਰਡਸ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਬਦਲਦਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਲਿੰਕ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਯਾਨੀ ਘੋੜਾ ਚੌਕ ਬਠਿੰਡਾ। ਆਫਲਾਈਨ 9 ਤੋਂ 11, 12 ਤੋਂ 2 ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ OMR ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਨਕਾਰ ਮੈਥਸ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੈਨਲ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਥ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਮੈਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ, ਆਪ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਐਂਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਵਾਰਡ 2022 ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਫ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਵਾਰਡ। ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਵਾਰਡ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆਗਾ? ਉਹ ਮਿਲਿਆਗਾ ਜੀ UIDAI। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ UIDAI ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੂਰਬੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਰੋਹਿਣੀ ਨਈਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੋਹਿਣੀ ਨਈਅਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੋਹਿਣੀ ਨਈਅਰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਅਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਵਾਰਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਫਸਟ ਰੋਹਿਣੀ ਨਈਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਿਆਗਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਰ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੇਠ ਸੇਥਰੀ ਚੈਮ ਸੰਗਤਮ। ਸੇਥਰੀ ਚੈਮ
सेठ तो याद रख लो, सेठरी चैम संगतम, ठीक है, सेठरी चैम संगतम। सो इन्होंने बेसिकली जो अवार्ड मिलया है, सो याद रखना किहड़ा अवार्ड मिलेगा, रोहिणी नैयर, राइट हो गया। अगला भाई, अगले ते आउने आपां, अगला हैगा जी, कहंदा तमिलनाडु दे लेखक एम राजेंद्रन नूं अपने किहड़े नावल लई ਸਾਹਿਤ अकादमी पुरस्कार 2022 मिलिया। अपनी 8वें शेड्यूल दे विच 22 लैंगुएज आ, हर लैंगुएज ते साहित्य अकादमी अवार्ड मिलदा, जिवें पंजाबी होगी, एवें ही तुहाडा जिहड़ा तमिल है, तेलगू है, हिंदी है, बहुत सारियां भाषावां, राइट है। सो आपां नूं इत्थे पुछागा भी तमिलनाडु राइटर है जिहड़ा कि नाम याद रखना गा एम राजेंद्रन, इन्हां नूं अवार्ड जिहड़ा मिलिया साहित्य अकादमी अवार्ड, वो किहड़े नॉवल वास्ते मिलेगा, नॉवल वास्ते मिलिया तमिल लैंगुएज दे विच, राइट। किहड़े नॉवल वास्ते मिलिया, उस नॉवल का नाम हैगा जी काला पानी, उस नॉवल का नाम हैगा काला पानी। हुण आपां 22 दी 22 लैंगुएज तो याद रख नहीं सकते, वध तो वध आपां नूं पंजाबी का भी पूछा जा सकता, हिंदी का भी पूछा जा सकता, आए तो बहुत सारे पूछे जा सकते, एक बारी तुसीं गो थ्रू हो सकते हो, पर फिर भी आपां पंजाबी हिंदी तो कर ही लईए, पंजाबी तो खास करके इंपॉर्टेंट है पंजाब एग्जाम वास्ते। सो पहला तो याद रखना एम राजेंद्रन नूं मिलेगा काला पानी वास्ते, जिहड़ा कि साहित्य अकादमी 2022 अवार्ड मिलिया। हुण जे आपां पंजाबी की गल करिए, पंजाबी का जिहड़ा हैगा जी ओह मैं अयन घोष नहीं, मैं अयन घोष नहीं, पंजाबी च लिख देना मैं अयन घोष नहीं। आ लाइन जी पता नहीं क्यों बच गई, आड़ा या नन्ना, घोष घग्गे नूं होड़ा, ठीक है, मैं अयन घोष नहीं, राइट। अयन घोष बेसिकली करैक्टर का नाम है, कोई ਇਹਦਾ मीनिंग नहीं हैगा, ये करैक्टर का नाम है, मैं अयन घोष नहीं। सो ये ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ बेसिकली शॉर्ट स्टोरी है, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਉਹ कौन ਆ ਭਾਈ, सुखजीत, ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ सुखजीत, यानी साहित्य अकादमी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆਗਾ 2022 ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹ सुखजीत ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਗਾ। सुखजीत कौन ने, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने अपनी शॉर्ट स्टोरी यानी लिखी है मैं अयन घोष नहीं, राइट हो गया। एंड काला पानी वास्ते तमिल लैंगुएज दे विच एम राजेंद्रन नूं मिलेगा, पंजाबी दे विच मिलेगा मैं अयन घोष नहीं। हिंदी दे विच भी याद कर लो भाई, हिंदी दे विच हैगा जी तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द जिहड़ा यह बदरी नारायण द्वारा लिखा गया, बदरी नारायण। इन्हों हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 मिले है। सो याद रख लो, हिंदी पंजाबी तो पक्का ही याद रखना, तमिल वाला इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आप ये क्वेश्चन पढ़ ही लिया, राइट हो गया। इस तो बाद भाई, इस तो बाद आ गया जी, कहते किहड़ी यूनिवर्सिटी ने नैशनल असैसमेंट एंड एक्रीडेशन कौंसल द्वारा ए ग्रेड प्राप्त किया है, यानी जिन्होंने आप कहते NAAC, यानी की है नैशनल असैसमेंट एंड एक्रीडेशन कौंसल। बेसिकली ये हायर एजुकेशन वास्ते होंदा गा, जिवें पहला अपना 10वीं तक हो गया, फिर सैकेंडरी हो गया, फिर उस तो बाद आप गल करते हैं हायर एजुकेशन, राइट। सो हायर एजुकेशन के विच किहड़ी यूनिवर्सिटी ने ए ग्रेड प्राप्त किया बाय द NAAC असैसमेंट, राइट। जिवें जवाकां दी असैसमेंट लगती होंदी 10वीं 12वीं चौवें यूनिवर्सिटियां दी असैसमेंट भी लगती है, तो ए ग्रेड जिहड़ा मिलेगा जी वह मिलेगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, राइट। सो GNDU नूं मिलेगा, GNDU काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कदों बनी है, 1969 के, 1969 के, राइट। 1469 के गुरु नानक देव जी का जन्म होया, सो 500 साल बनाई गई सी, राइट। 1969 के GNDU की इस्टैबलिशमेंट हुई है। याद रख लो कि NAAC इन्हों मिलेगा। GNDU का चांसलर पूछा जा सकता है, ये GNDU के जो चांसलर है भाई वो कौन होंदा गा, वो गवर्नर होंदा है। वैसे यूनिवर्सिटी के जोड़े चांसलर होंगे गवर्नर ही होंगे, राइट है। चांसलर कौन है भाई, गवर्नर, ये याद रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नर ऑफ पंजाब। इस तो बाद आ गया जी, कहते 21 साल बाद किसने मिसिज वर्ल्ड 2022 का खिताब जितया है। मिसिज वर्ल्ड एक मैरिड वूमेन कैटेगरी भी होंगी है, मैरिड वूमेन कैटेगरी के विच मिसिज वर्ल्ड 2022 जो खिताब जितेगा वो 21 साल बाद जितया गया, यानी 21 साल का मतलब की है कि पहला यह 2001 के जितया सी, हुण आपां 2022 के जितया गया। 2001 के किहने जितया सीगा, 2001 के जितया सीगा जी अदिति गोवित्रिका, ठीक है, अदिति, अदिति तो याद रख लो शॉर्ट नेम 2001। वैसे ये शायद ना भी पूछा जाए,
पर 2022 ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ ਸਰਗਮ ਕੌਸ਼ਲ ਸਰਗਮ ਕੌਸ਼ਲ ठीक सरगम कौशल नूं मिस वर्ल्ड टाइटल जितैगा 2022 21 साल बाद पहला अदिति राइट हो गया। अगला कहता जी फीफा विश्व कप के 22वें संस्करण में गोल्डन बूट अवार्ड 2022 द्वारा किस नूं सन्मानित किया गया। गोल्डन बूट किनूं मिलिया फीफा विश्व कप के विच। फीफा विश्व कप का फाइनल मैच जेकर तुसीं देखा होवे तां बहुत रोमांचक सीगा। किहदे विचकार सीगा यह अर्जेंटीना एंड फ्रांस के विचकार सी। ठीक है अर्जेंटीना किहदी है भला यह हैगी है जी मैसी दी। मैसी बहुत मशहूर फुटबालर राइट मैसी इन्होंने वर्ल्ड कप जित लिया सी 2022 का फीफा जो फुटबॉल कप है। फ्रांस रनर अप रही ऑबवियस गल है एंड फ्रांस का जो मशहूर है वह है जी मबापे काइलन मबापे राइट। सो काइलन मबापे ने वर्ल्ड कप के हैट्रिक प्लस पेनल्टी द एक यानी 4 गोल किए सीगे इस करके इन्होंने गोल्डन बूट अवार्ड भी मिले। वैसे भी इन्हों का काफ़ी ਜਿਹੜਾ परफॉर्मेंस वधिया रहा तो इन्होंने गोल्डन बूट अवार्ड मिलेगा। आही पूछा कि गोल्डन बूट अवार्ड 2022 फीफा वर्ल्ड कप 2022 के किनू मिलेगा तो काइलन मबापे ने मिलेगा फ्रांस दे काइलन मबापे जित अर्जेंटीना गई सी पेनल्टी तो हो गया सी अर्जेंटीना जित्ती सी राइट। अर्जेंटीना तो कौन मैसी एंड बाइजू के जोड़े अंबैसडर है वह मैसी बनाए गए हैं बाइजू के राइट। सो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे सारा कुछ। अगला कहता जी Which airline company has been awarded the safety performer of the year by GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स यानी GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा कहता केड़ी एयरलाइन कंपनी नू सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर यानी पूरे तरीके दे नाल सेफ्टी है ना सब तो वधिया सेफ्टी परपज़ तो केड़ी एयरलाइन नू GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स तो अवार्ड प्राप्त होयागा वो हैगी है जी स्पेस एजेंसी स्पाइस जेट एयरलाइन केड़ी है स्पाइस जेट। ठीक है सो आप सारे अवार्ड कर रहे हैं देखो किन्ने वधिया तरीके दे नाल तुहाडे पिछले 6 महीने के अवार्ड है रेडी हो जाएंगे। अज उन्होंने 6 महीनों के विचों पहला एक सैशन एक तरीके का हैगा तो 12वां सैशन है पर आप हुण अज तो कैटेगरी वाइज करांगे उस तरीके दे नाल तो पहले ही होया राइट। तो एवें आप स्पोर्ट्स के करांगे एवें आप MOU के करांगे साइंस एंड टैक के करांगे किन्ने वधिया तरीके दे नाल हो जाऊगा। एंड देखना चाहुंदे तो चैनल नूं तो बने रहना पैना राइट। चलो खैर अगला कहना जी किहड़ी राज सरकार नूं इस दे जन अंदोलन लई तपदिक ACSM विच सर्वोत्तम प्रैक्टिस लई सन्मानित किया गया। बेसिकली यह TB जिहड़ी हुंदी ट्यूबरकुलोसिस हुंदा उस नूं खत्म करने वास्ते एक हैगा जन अंदोलन मूवमेंट राइट। सो बेस्ट प्रैक्टिस इन ट्यूबरकुलोसिस ACSM किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट नूं यह अवार्ड मिलेगा। ACSM का मतलब बेसिकली की है ACSM का मतलब हुंदा जी एडवोकेसी सी तो हो गया कम्युनिकेशन सोशल मोबिलाइजेशन यानी घुम के सारा कुछ कम्युनिकेट करके इस बीमारी बारे दसना इरेडिकेट करना राइट। सो केड़ी स्टेट गवर्नमेंट नूं बेस्ट प्रैक्टिस इन ट्यूबरकुलोसिस ACSM फॉर इट्स जन अंदोलन मूवमेंट वास्ते अवार्ड मिलेगा वो केड़ी स्टेट गवर्नमेंट आ भाई वो हैगी है जी मेघालय। वो केड़ी आ मेघालय। हुण जदों मेघालय बारे आपां जान लिया तो CM ते गवर्नर आपां नूं मेघालय दा याद होना चाहिए। मेघालय का जिहड़ा CM है जी वह कौन है कोनराड संगमा CK संगमा भी कह सकते हो कोनराड संगमा ते गवर्नर कौन है BD मिश्रा गवर्नर हो गया CM हो गया ये दोनों तुसीं याद रखने ने बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन भाई अगला कहता हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द 25th श्री चंद्रशेखर सरस्वती नैशनल एमिनेंस अवार्ड यानी किस नूं 25वां चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय एमिनेंस अवार्ड मिलेगा राइट। सो किन्हां नूं मिलेगा अपने पूर्व फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट किन्हां नूं मिलेगा वेंकैया नायडू नूं मिलेगा 25वां चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय एमिनेंस अवार्ड याद रख सकते हो। ठीक है वेंकैया नायडू सारी चीज़ें नोट करनी भाई जो मैं एक्सट्रा दस दिना हुंदा वो उन्ना की जरूरी हुंदा जिथे नहीं लोड़ उत्थे आपां नूं कोई फायदा नहीं। चलो खैर तो आयुष्मान भारत सेहत खाता ID सिरजण लई श्रेणी विच किहड़े राज केंद्र शासित प्रदेश ने पहले इनाम नाल सन्मानित किया गया।
यानी किहड़ी स्टेट या यूटी नूं अवार्ड मिलेगा पहला फस्ट प्राइज मिलेगा किहड़ी कैटेगरी दे विच आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच किहड़ी यूटी नूं अवार्ड मिलिया है हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी अकाउंट आईडी बेसिकली एक कैटेगरी है राइट इहदे विच मिलेगा जी जम्मू एंड कश्मीर नूं जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड फिर इत्थे गवर्नर याद रखना गा लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन अपना मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर याद रखियो मनोज सिन्हा आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अवार्ड मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर नूं। अगला भाई कहना किहड़ी संस्था नूं लोकल अडैप्टेशन चैंपीयंस अवार्डा नाल सन्मानित किया गया है यानी किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हों लोकल अडैप्टेशन चैंपीयंस अवार्ड मिला है लोकल अडैप्टेशन चैंपीयनशिप अवार्ड जिहड़ा सीगा ये कोप 27 ये तुहानूं पता होगा ये बारे जेकर तुसीं पढ़िया होवे मैं चंगी तरह पढ़ा रखा नवंबर करंट अफेयर दे विच कोप 27 बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिहदे विच पीस कॉन्फ्रेंसिस यानी हुंदी है बेसिकली वर्ल्ड दे बहुत सारे जिहड़े कंट्री आ ओह इहदे विच हिस्सा लैंदे आ कोप 27 होई कित्थे सी ये होई सीगी जी इजिप्ट दे विच इजिप्ट दे विच होई सी कित्थे होई सी इजिप्ट दे विच शेख की सीगा शर्म अल शेख एक जगह जिथे इजिप्ट दे विच राइट उत्थे कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 नंबर है यानी एनमी यह सीगी राइट इत्थे एक लोकल अडाप्टेशन चैंपीयनशिप अवार्ड मिलेगा वह किनू मिलेगा ये अपन पूछा यानी किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन नूं मिलेगा वह ऑर्गेनाइजेशन भाई महाराष्ट्र की है वह महाराष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशन का नाम हैगा जी SSP महाराष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशन का नाम की है SSP का मतलब की है जी स्वयं इस तो बाद हैगा जी स्वयं शिक्षम राइट स्वयं शिक्षम ऑर्गेनाइजेशन राइट SSP कह लो या SSC कह लो वैसे SSO होगा मैनू P तो कुछ याद नहीं आ रहा जहाँ तक प्रोग्राम होगा स्वयं शिक्षम प्रोग्राम होगा राइट चलो खैर तो महाराष्ट्र की SSP यानी स्वयं शिक्षम प्रोग्राम कह लो या ऑर्गेनाइजेशन कह लो इन्ना तो अपने आप यानी याद आ जाऊगा राइट इस संस्था को बेसिकली लोकल अडैप्टेशन चैंपीयनशिप जिहड़ा अवार्ड मिलिया है राइट मिलिया कित्थे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 शर्म अल शेख दे विच होई सी इजिप्ट दे विच ओके भाई महाराष्ट्र की कंपनी जरूर याद रख लियो। अगला कहना जी उसारू कम्मां लई जमन वाला बजाज अवार्ड लई किस नूं चुनिया गया है हु हैज़ बीन चूजन फॉर द जमनाला ओके जमनाला प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर उधर हो जाती है कोई चक्कर वाली गल नहीं सो जमनाला जिहड़ा बजाज अवार्ड कंस्ट्रक्टिव वर्क वास्ते मिले बेसिकली जिहड़ा जमनाला बजाज अवार्ड ने 4 कैटेगरी दे विच मिलदा गा आपां नूं कंस्ट्रक्टिव वर्क वास्ते पुछया गया कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब की आ कि जिहड़ियां छोटी छोटी कम्यूनिटी हुंदियां उन्हां वास्ते काम करना ठीक है सो जिहड़ा कंस्ट्रक्टिव वर्क वास्ते जमनाला बजाज अवार्ड मिलेगा वो किन्हां नूं मिलेगा जी वो मिलेगा नलेश दसई नूं वो मिलेगा नलेश दसई नूं यह बील कम्यूनिटी वास्ते काम करते हैं राइट सो नलेश दसई नूं राइट होर बहुत सारी कैटेगरी है जिवें जिहदे विच एक साइंस एंड टैक भी है साइंस एंड टैक कैटेगरी भी है साइंस एंड टैक जिहड़ा मिलेगा वो मिलेगा जी मनसूखा बाई नूं मिलेगा साइंस एंड टैक दे विच मिलिया यानी क्वेश्चन तुहानूं सिर्फ इन्ना पूछा जाऊगा कि उसारू कम्मां लई चलो ये तो कंस्ट्रक्टिव वर्क हो गया हु हैज़ बीन चूजन फॉर द जमनाला बजाज अवार्ड फॉर साइंस एंड टैक कैटेगरी तो फिर की आऊगा मनसूखा बाई ये याद रख लो मनसूखा बाई पूरा नाम वैसे मनसूखा बाई प्रजापति है पर मनसूखा बाई याद रख लो नहीं प्रजापति भी लिख देना मैं प्रजापति राइट ये याद रख सकते हो गांधी पीस वास्ते भी अवार्ड मिलता गा वो वालिद नूं मिलेगा राइट लिख देना मैं महात्मा गांधी पीस कैटेगरी दे विच भी मिलता गा वो किन्हां नूं मिलेगा जी वालिद सलियाबी नूं मिलेगा मैं 4 कैटेगरी दस रहा एक तो हैगी कंस्ट्रक्टिव वर्क जिहड़ा कि नलेश दसई नूं मिल गया राइट दूसरा हैगा साइंस एंड टैक कैटेगरी जिहदे विच मनसूखा बाई प्रजापति नूं मिल गया तीसरी कैटेगरी हैगी महात्मा गांधी पीस प्राइज हैगा यह जमनाला बजाज अवार्ड ही है कैटेगरी अलग अलग है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਦ ਸਲਿਆਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਸੋਫੀਆ ਸਾਇਕ, ਸੋਫੀਆ ਸਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪॉर्टेंट ਬਣਦਾ ਗਾ। ਸੋਫੀਆ ਸਾਇਕ, ਨੀलेश देसाई, मनसूखा भाई प्रजापति, वालिद सलियाबी, सारा याद रखना। अगला आ गया भाई, अगला कहता जी CN मंजूनाथ करिनप्पा जी ਅਤੇ S ਸਦਾਕਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਾਦੋਜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? यानी ये तीन जाने आ, एक तो हैगा जी CN मंजूनाथ, एक हैगा जी करिनप्पा जी एंड तीसरा जिहड़ा हैगा जी वो हैगा S सदाकशरी। सो इन्हों सिलेक्ट किया गया नादोजा अवार्ड, नादोजा अवार्ड। ये नादोजा अवार्ड किहनूं दिता जांदा जां ऐ कह लो भी नादोजा दा मीनिंग जिहड़ा हैगा वो हुंदा गा टीचर, टीचर्स टू द लैंड, यानी टीचर जिहड़े वधिया वधिया टीचर है, प्रोफैसर है जिहड़े, उन्हां नूं मिलदा गा नादोजा दा मतलब हुंदा गा टीचर टू द लैंड, टीचर टू द लैंड। ये लैंगुएज हैगी कन्नड़, राइट। सो कन्नड़ यूनीवर्सिटी है जी उन्होंने द्वारा यह दिता गया। कन्नड़ यूनीवर्सिटी, कन्नड़ यूनीवर्सिटी है कित्थे? हंपी दे विच, कन्नड़ यूनीवर्सिटी हंपी। सो उन्होंने लैंगुएज दे विच ही आ नादोजा अवार्ड, टीचर्स टू द लैंड। ये तीन टीचरां नूं मिलेगा, CN मंजूनाथ, ठीक है, करिनप्पा जी एंड S सदाकशरी। सो इन्हां तिन्नां नूं अवार्ड मिलेगा नादोजा, टीचर टू द लैंड, कन्नड़ यूनीवर्सिटी द्वारा मिलेगा जी कि हंपी दे विच। सो इन्ना याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया, कहता जी भारत का 77वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया सी? पहली गल तो पहला ग्रैंड मास्टर अपना कौन सीगा? विश्वानाथन आनंद, विश्वानाथन आनंद सारे नूं पता होगा। विश्वानाथन आनंद ने 14 साल की उम्र के 1988 दे विच यह ग्रैंड प्रिक्स जिहड़ा ग्रैंड मास्टर का अवार्ड जित लिया सी चैस दे विच, राइट। हुण 77वां जिहड़ा होयागा उहदे विच अपने इंडिया दे ही नहीं जित्तिया, उहदा नाम आ जी आदित्य मित्तल, आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल ने 77वां चैस ग्रैंड मास्टर जिहड़ा ओह जित लिया। सो याद रखना गा पहला ग्रैंड मास्टर जिहड़ा जित्तिया सी ओह विश्वानाथन आनंद 1988 दे विच। अगला कहता BBC वालों जारी की गई 100 सब तो प्रभावशाली औरतों की सूची में कितनियां भारतीय औरतां शामिल हैं? BBC तुहानूं पता ब्रॉडकास्ट चैनल है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल है, राइट है। ये इंडियन वूमेन नूं पहलियां 100 दे विच यानी इन्फ्लुएंशियल जो प्रभावशाली औरतां पहलियां 100 दे विच अपनियां किन्नियां जिहड़ियां इंडियन वूमेन आ उन्हां नूं यानी उन्होंने इहदे विच हासिल किया अपना नाम, वो है जी 4। हुण 4 किहड़ा? सब तो मशहूर प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, जॉन्स भी ला सकते, हुण तो विआह हो गया ना। प्रियंका चोपड़ा नूं मिलेगा पहला, याद रख लो, एक्ट्रेस है, राइट। दूसरा हैगा जी गीतांजलि, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री। तीसरा नाम जिहड़ा हैगा जी वो हैगा गा श्रीशा बांडला, श्रीशा बांडला। प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, श्रीशा बांडला एंड चौथा जिहड़ा नाम है जी वो हैगा जी स्नेहा जवाली, स्नेहा जवाली। सो नाम याद रखने सौखे है, प्रियंका चोपड़ा वैसे तुसी याद रख लोगे, मुड़ के गीतांजलि श्री, श्रीशा बांडला एंड स्नेहा जवाली। सो चारों मिलेगा, यानी अपना आंसर तो वैसे 4 है, नाम भी इंपॉर्टेंट बनते भाई। BBC दी 100 वाली सूचियां चाहिए, सो नाम तो इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखने, ठीक है। चलो खैर अगला आ गया, कहता जी हु हैज़ वन बेस्ट डायरैक्टर एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022। यानी कहने का मतलब न्यूयॉर्क जिहड़ा फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 है, सर्वोत्तम निर्देशक कौन है? राजा मौली, राजा मौली, ठीक है। सो याद रखना राजा मौली तो बहुत हुण मशहूर है, साउथ डायरेक्टर है, RRR होगी, बाहुबली होगी, बहुत सारिया तगड़ी तगड़ी मूवी इन्होंने बना दी, राइट। सो याद रखना गा राजा मौली, राजा मौली, SS राजा मौली पूरा नाम है, SS। चलो खैर, तो कहता जी एक किताब दा चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्टरी, ये किताब है जी किस द्वारा कहता लिखी गई है, जिसनों कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज़ है जो 2022 का मिलेगा, यानी कमला देवी चट्टोपाध्याय प्राइज़ इन्होंने मिलेगा। कि बुक है वो चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्टरी। ये ऑथर कौन है? ये ऑथर है जी
ਹੁਣ जेकर ऑथर होगा तो ਉਹਦਾ नाम भी फिर ਉਹ ਜਿਹਾ ही होगा, शेखर पाठक। शेखर पाठक जिन्हों ने द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्टरी लिखी है एंड इस कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड मिलेगा। एंड ऑथर कौन है? शेखर पाठक, याद रखना। अगला आ गया जी, हाल ही विच मैरियम वैबस्टर जो कि अमरीका का सब तो पुराना शब्दकोश प्रकाशक है ने अपने साल 2022 ਦੇ वर्ड वजों ਕਿਹੜੇ शब्द की चोण की है। जेकर तुसी कदे भी डिक्शनरी डाउनलोड नहीं की तो ये मेरे कहने ते कर लो। मैरियम वैबस्टर मैं इनू हमेशा अपने फोन के रखदा, यानी यह डिक्शनरी इन्नी क वधिया जिवें अपनी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरियां हो गई जिहड़ियां आपां फिजिकल फॉर्म हार्ड कॉपी दे विच लैंदे आ, सॉफ्ट दे विच जाए कह लो भी ओबवियस गल एप्लीकेशन मरीम वैबस्टर बहुत 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 वधिया मैनूं लगदी है, यानी ये तुहाडे वास्ते भी काम आ सकती है। सो मरीम वैबस्टर की करते जिहड़ा कि मोस्ट सर्च किया जाता है चाहे वर्ड ऑफ द ईयर कढ़ते हैं, राइट। सो वर्ड ऑफ द ईयर 2022 मरीम वैबस्टर जिहड़ी कि अमेरिका की ओल्डेस्ट डिक्शनरी है, राइट। सो वर्ड ऑफ द ईयर वो वर्ड किहड़ा गा जिहड़ा चुनिया गया, उस वर्ड का नाम है जी गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग, गैस लाइटिंग। ये गैस लाइटिंग हुंदा गा किसी नूं साइकोलॉजिकल मैथड दे नाल अपने जिन्हें कह लो भी जाल दे विच फसा लेना, बेईमानी दे नाल फसा लेना, किसी नूं अपनी गल्लां बातां मैन्यूपुलेट कर लेना, राइट। गैस लाइटिंग मैरियम वैबस्टर, राइट। याद रखनी डिक्शनरी भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सोहनी है, राइट। एंड वर्ड ऑफ द ईयर किहड़ा गा? गैस लाइटिंग। अगला भाई कहता हाल ही विच मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 द्वारा किस नूं सन्मानित किया गया है। हुण ध्यानचंद बारे कौन नहीं जानता? हाकी, राइट। सो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो मिलेगा 2022 का वो किनू मिलेगा भाई? वह मिलेगा जी अचांता शरद कमल। अचांता शरद कमल। हुण आए ना याद रख लो भी ध्यानचंद तो हॉकी के नाल रिलेटेड सीगे, सो अचांता शरद कमल भी हॉकी के नाल रिलेटेड होगा। ये हॉकी प्लेयर सी बट अवार्ड बहुत सारे स्पोर्ट्स कैटेगरी के मिलता है। अचांता शरद कमल नूं जिहड़ा अवार्ड मिलेगा वो टेबल टेनिस करके मिले, टेबल टेनिस प्लेयर है बेसिकली, टेबल टेनिस प्लेयर। सो याद रखना का मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो 2022 मिला, अचांता शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर है। अगला भाई अगला आ गया, कहता जी अमरीका विच किस नूं द एमेजरी ऑफ पीस अवार्ड मिला है। हु हैज़ रिसीव्ड द एमेजरी ऑफ पीस अवार्ड ऑफ द US। यह प्रचारक है, यह कई वास्ते जिवें कहंदे हुंदे भी आपां बाबा मानदे हां कई जाने, राइट। सो याद रखियो भाई श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर जी को यह अवार्ड मिलिया है। श्री श्री रविशंकर द एमेजरी ऑफ पीस अवार्ड US का अवार्ड है, उत्थे ही होया सी सैन फ्रांसिस्को दे विच। श्री श्री रविशंकर जी को यह अवार्ड मिल गया। अगला भाई कहता किहड़ी विरासती जायदाद ने 2022 के यूनैस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हैरीटेज कंजरवेशन विच अवार्ड ऑफ एक्सलेंस जितया है। किहड़ी हैरीटेज प्रॉपर्टी है, विच हैरीटेज प्रॉपर्टी जिन्हें अवार्ड जितया काहदे विच? एक्सीलेंस इन द 2022 यूनैस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हैरीटेज। हुण यूनैस्को तुहानूं पता जिवें अपने बहुत सारिया हैरीटेज साइट्स है जिहड़ी यूनैस्को अपनी लिस्ट दे विच पाउंदी है, तां एक्सीलेंस 2022 वास्ते किहनूं अवार्ड मिलेगा भाई? वो मिलेगा जी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ठीक है, मुंबई दे विच है, ठीक है, मुंबई दे विच यूनैस्को हैरीटेज साइट दे विच आउंदी है। एक्सीलेंस अवार्ड मिला छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय नूं, ठीक है। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। वधिया लग्या तो लाइक का बटन जरूर दब्या करो, शेयर भी करा करो पतंदरो। इन्ने घट टाइम दे विच मैं इन्ना कुछ करा दिंदा, राइट। किन्नी वधिया चीज़ां कराउणा, कोई फालतू गल नहीं करता, फिर तुसीं मेरी हैल्प भी करो। चलो खैर 2022 विच स्टैम दे सुपरस्टार वजों मानता प्राप्त लोकां विच 3 भारती मूल दीआं औरतां शामिल हैं। बेसिकली स्टैम की है? ये स्टैम एक तरह का साइंस एंड टैक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया एंड मैथेमैटिक्स हो गया। साइंस एंड टैक, इंजीनियरिंग एंड मैथेमैटिक्स। सो ये जोड़े सुपरस्टार वजों उभर के आते हैं, यानी इंडियन ओरिजिन वूमेन 3 जाणियां नूं मिलेगा 2022
एज ए सुपरस्टार। जिमें फिल्मां के सुपरस्टार होंगे आ उमें साइंस एंड टैक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमैटिक्स के सुपरस्टार भी तो होणगे, राइट। इंडियन ओरिजिन 3 वूमैन को यह अवार्ड मिलेगा। उन्हों का नाम पूछा गया, उन्हों का नाम आ जी नीलिमा कडियाला, नीलिमा कडियाला, डॉक्टर अन्ना बाबू रिमानी, नीलिमा कडियाला, डॉक्टर अन्ना बाबू रिमानी एंड डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी, एंड डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी। सो ये तिन्ने इंडियन ओरिजिन वूमैन, ठीक है, नीलिमा, आना ते इंद्रानी। इन्होंने मिलेगा भी स्टेम के सुपरस्टार। स्टेम का मतलब साइंस एंड टैक, इंजीनियरिंग एंड मैथमैटिक्स। अगला भाई कहता किहड़ी फिल्म ने इंटरनेशनल फिल्म फैसटीवल ऑफ इंडिया के 53वें एडिशन विच ICFT यूनैस्को गांधी मैडल जितया है, राइट। यानी किहड़ी मूवी ने ICFT यूनैस्को गांधी मैडल इन 53 एडिशन जो इंटरनेशनल फिल्म फैसटीवल इंडिया होयागा ऑफ इंडिया का, राइट, वो जितेगा भाई। उस फिल्म का नाम पूछागा, उस फिल्म का नाम हैगा जी नरगेसी। नरगेसी फिल्म को मिलेगा यूनैस्को गांधी अवार्ड, यूनैस्को गांधी अवार्ड नरगेसी। यह ईरानियन फिल्म है, ईरानियन फिल्म है, ईरानियन मूवी है, ईरानियन फिल्म नरगेसी को अवार्ड मिलेगा। ICFT यूनैस्को गांधी मैडल 53वां एडिशन IAF याद रखना। किसनों पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? पैरा स्पोर्ट्स, ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स विकलांग यानी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा 2022 का। वो किनू मिलेगा जी? अवानी लेखारा, एवानी लेखारा, अवानी लेखारा, अवानी लेखारा, याद रखना। अवानी लेखारा नू पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा। एंड लेटेस्ट याद रखियो कि ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल T20 दे विच जिहड़ा क्रिकेट ऑफ द ईयर मिलेगा वो मिलेगा जी सूर्या कुमार यादव नू, सूर्या कुमार यादव नू। हालांकि स्पोर्ट्स वाले आप अड भी करांगे पर फिर भी एक तरीका सूर्या कुमार यादव T20, सूर्या कुमार यादव याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला आ गया पंचायती राज मंत्रालय के किहड़े प्रोजैक्ट ने ई प्रशासन लई कौमी इनामां उत्ते गोल्ड अवार्ड जितया है? विच प्रोजैक्ट, किहड़ा प्रोजैक्ट आ, किहड़ी मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। उन्होंने गोल्ड अवार्ड जितया गया एट द नैशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। सारा कुछ डिजिटल हो रहा है। सो ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ तक पंचायतां उन्होंने भी डिजिटल कर रहे हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रोजैक्ट सीगा जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का अवार्ड जित लिया, गोल्ड अवार्ड, ठीक है। वो प्रोजैक्ट का नाम की है भाई ई पंचायत मिशन मोड, ई पंचायत मिशन मोड प्रोजैक्ट है। किहदा प्रोजैक्ट है? किहड़ी मिनिस्ट्री का प्रोजैक्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का प्रोजैक्ट है। इन्होंने गोल्ड मैडल जित लिया नैशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, यानी डिजिटली ये बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, परफॉर्मेंस इन्हों की वधिया। अगला, किहड़े देश ने 2023-25 के कार्यकाल लई अंतरराष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकल कमिशन वाइस प्रेजिडेंसी ਅਤੇ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन जिता? यानी चेयरमैन वास्ते भी कंपीटिशन होंदा गा। सो किहड़ा कंट्री ਉਹਦਾ चेयरमैन बन गया? काहदा चेयरमैन बन गया? इंटरनेशनल इलैक्ट्रॉनिकल कमिशन वाइस प्रेजिडेंसी ते ਉਹਦੀ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का, राइट। कौन चेयर करूगा या 2023 ते 25 वास्ते? इंडिया। ये भी US ਦੇ ਵਿੱਚ ही प्रोग्राम होया सीगा, US ਦੇ ਵਿੱਚ ही सैन फ्रांसिस्को ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ प्रोग्राम होया सी। सो इंडिया ने यह बेसिकली जित लिया, इंडिया हुण चेयर करूगा। अगला, सिक्ख्या मंत्रालय वालों 2021-22 के अकादमिक सैशन लई किन्ने स्कूलों नूं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया? स्वच्छ भारत मिशन चलता रहिंदा, तुहानूं पता है। सो उस करके स्वच्छ विद्यालय यानी स्कूल भी स्वच्छ होने चाहिए, उन्हां वास्ते स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिलदा गा। 2021-22 वास्ते अकादमिक सैशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर किन्ने स्कूलों नूं अवार्ड मिलेगा भाई? वो है जी 39। हुण 39 के 39 तुसीं याद नहीं रख सकते, बस तुसीं इन्ना ही याद रखना। यही क्वेश्चन शायद पेपर दे विच आ जाए कि किन्ने स्कूलों नूं पुरस्कार मिले? 39 अलग अलग कैटेगरियां होंदियां, ठीक है, याद रख लो। अगला, किहड़े बैंक ने बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जितया है? बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड, बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड जिहदा
सारा कुछ वधिया हुंदा, लोन एसेट क्रैडिट डैबिट बहुत कुछ यानी हुंदा, जिहड़ा भी डैट वगैरह सारा कुछ वधिया हुंदा। सो बैंकर ऑफ द ईयर जिहड़ा अवार्ड 2022 मिलेगा वो मिलेगा जी बेंगलुरु बेस्ड, बेंगलुरु बेसिकली हैडक्वार्टर है। बैंक किहड़ा है जी? कैनरा बैंक, कैनरा बैंक ने यह अवार्ड जितया है। कैनरा बैंक, बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया। अगला भाई छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिहड़ा कि इस तो पहला आप पढ़ के हटे राइट है, जिन्होंने यूनैस्को हैरीटेज अवार्ड मिलेगा एक्सीलेंस वास्ते। अच्छा उही क्वेश्चन है तो विच सिटी विच हैज़ वन यूनैस्को अवार्ड। अच्छा किहड़ी सिटी दे विच? मैनूं लगदा मैं उदों दसता सी, नहीं दसिया तो फिर हुण दस दिना। मुंबई, वैसे सौखा ही है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जिहड़ा है वो मुंबई दे विच आ भाई, जिन्हों यूनैस्को अवार्ड एक्सीलेंस वास्ते मिला है राइट। सो ये मुंबई दे विच आ, सो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट बनता है राइट। आप बाकी फ्री स्टडी मटीरियल जेकर पढ़ना चाहुंदे हो तो फ्री स्टडी मटीरियल जिहड़ा हैगा वो टैलीग्राम ते हर रोज़ तुहानूं मिलदा गा। उन्हां दे विचों ही आह क्वेश्चन हुंदे आ, जेकर हर रोज़ पढ़ोगे वो स्लाइड्स लो, प्रॉपर तरीके दे नाल पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, लिखो उत्थे कि यह नोट्स देखो। सीधी जी गल है, जिन्ना मैनूं लगदा स्टडी मटीरियल दिना ठीक है, बहुत सारे कॉपी पेस्ट कर लेंदे आ, करी जाण दो। मैं कदे बोलिया भी नहीं, कदे तुसीं सुनिया नहीं होगा कि मैं बोलदा, ठीक है। कोई चक्कर वाली गल नहीं, कोई चक्कर वाली गल नहीं। मेरा तो यह है भी कॉपी पेस्ट कर लोगे, पढ़ाउणा तो मैं ही हाँ राइट। मेरा हुण तुसीं जुबान तो नहीं, मेरा बोलने का तरीका तो नहीं खो सकते, बहुत सिंपल जी गल है। हालांकि कदे कदे मन खराब होंदा गा भी मेहनत नाल कंटेंट बनदा, बट चलो छड्डो, कोई चक्कर नहीं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल सबसक्राइब करो, वध तो वध शेयर करो। तो बाकी आप लाइव क्लासां भी हुण स्टार्ट करांगे। मैं दस्सिया सीगा कि संडे तो लाइव क्लास टॉपिक वाइज लग्या करूगी, 1 वीक 1 सबजैक्ट, यानी एक हफ्ता आप एक सबजैक्ट ते लाया करांगे। सिलेबस मैं दस दूंगा, उस तरीके दे नाल आपां सारा कुछ कराया करांगे राइट। एक हफ्ते दे विच आपां एक सबजैक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करांगे, कहने का मतलब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप होर नवीं वीडियोज़ नाल इस तरीके नाल मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला च रहो, इस तरीके नाल पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।